I will give you your next headline. Why didn't you ensure that your husband won't kill your lover, Mrs. Nanavati? To prove a hero right, you need a villain. Now that you're all alone, let me be your knight in shining armor. अच्छा, तो क्या करेगा आपका नेवल ऑफिसर? He has a gun and he will shoot you. पासा पलटने वाला था. Because you don't want to mess with a wounded tigress. मैं राम हूँ, राम! रावण ने सीता का अपहरण किया. मैंने रावण का विनाश किया. मैंने अधर्म का विनाश किया. नाटक का भी विनाश किया. कैसे बोल रहे हैं? सुन अभी, मैं राम हूँ, राम. रावण ने सीता का अपहरण किया. मैंने रावण का विनाश किया. मैंने अधर्म का विनाश किया. नाभि से आवाज आनी चाहिए. कितना सिखाने का तेरे को? मुझे भी सब कुछ सिखाना पड़ता है. एक मिनिट. साता चालू ठेवा प्रैक्टिस. हो चंदू टेंशन मत लो, अभी आ जाएगा. आ जाएगा. नाभि में से ओमकार करो, ओमकार. अरे ऐसे टाइम पास. कल की कुछ तैयारी है? सारे विटनेसेस के लिए सवालों की एक लिस्ट बना लिया. ठीक तो कल ये बोलो कोड. मेरी जगह आप क्रॉस एग्जामिन करेंगे. कल बहुत तगड़ा बैट्समैन आने वाला है. मुझे मैदान में उतरना ही पड़ेगा. कमांडर कावस मानेकशॉ नानावटी, सेक्शन 302 के तहत मर्डर चार्जेस. आप पर प्रेम भगवान दास आहूजा की हत्या का आरोप. ब्रूटल मर्डर. Fucking honorable husband killed my brother. He's not a killer. सोल्जर हमेशा बॉर्डर पे खड़ा होता है ताकि उसका घर सेफ रहे. His nation, his family is under threat. He kills. यही डर आज हिंदुस्तान की जनता में फैल रहा है. Prem loved me. वो सफेद डायन अगर घर में बैठी रहती ना तो आज ये नौबत नहीं आती. Marital status कहीं बीच में नहीं आता. डिफेंस ने तो अपना सिल्विया नानावटी को डायन बना कर. My wife is not my property. for his benefit. Trying to save the image of my country. कानून किसी को यह अधिकार नहीं देता किसी के घर में घुस जाए और उसको गोली मार. You're making a big mistake. Yes. अपनी नहीं तो कम से कम यूनिफॉर्म की तो फिक्र करो. Kawas Manekshaw Nanavati. How to death. क्या कहानी बताई नहीं. पटाखा लग के पटाखा. ओ मैडम जी, हमसे भी एक्स्ट्रा मीटर कर लो. अरे सफेद साड़ी में काला साया, तू है तुझ पे बच्चलन औरत, तू है. नानावटी हाजिर हो. Sylvia, don't do this, please. I have to do this. Mrs. Nanavati, please tell the court and the honorable jury when and where did you meet Commander for the first time? I met and married Kawas Nanavati in 1949, Portsmouth, England. I'm living in India since I returned that very same year. And after how many years of your marriage did you meet Prem Ahuja? After 7 years of marriage. What was your relationship with Prem Ahuja? आपका रिश्ता क्या था? I was infatuated with him. He could sense that. So he started giving me lots of attention. How was your married life before you met Prem Ahuja? It was perfect and happy before I came to know Prem Ahuja. Then what changed after you met Prem? Prem made marriage proposal to me before getting intimate. After intimacy, he avoided the subject whenever it came up in conversation. Mrs. Nanavati, were there any causes of unhappiness in your marriage?
Were you sad? क्या आप उदास थी? Was the commander being infidel or was he with other women? No. Mrs. Nanavati, please tell the court what happened on April 27th for lunch. We were sitting in our bedroom. Kawas tried to touch me. I told him not to, since I do not like him. Mrs. Nanavati, he's your husband. Why would you not like him? I was infatuated with Prem at that time. Just didn't feel the same for him anymore. Then what happened? And he asked me if I was in love with anyone else. And I said yes. He wanted to know who he was. I couldn't tell him. He asked whether it was Prem Ahuja. I said yes. Were you unfaithful to your husband? Yes. Were you sleeping with other men? Only Prem Ahuja. And if I may ask, how many times did you sleep with Prem Ahuja? Enough! Mrs. Nanavati, you can avoid this question if you want. No, I will answer this question. I slept with Prem Ahuja about 10 times. Where? Mostly at his place, a few times at a hotel. Mrs. Nanavati, is it fair to say that you've been cheating on your husband in spite of the fact that he's been so faithful and given you such a happy married life? Yes. And how did your husband react to you being unfaithful? He suddenly got up and said he wanted to go to Prem Ahuja's place and square things up. I got very alarmed and I begged him not to go. I said, please don't go, he might shoot you. Wait a second, what did you just say? Don't go because Prem will shoot you. Did Prem have a gun? Yes. Mrs. Nanavati, when you said don't go because Prem will shoot you, because he was carrying a gun, what did the commander say? He said, don't bother about me. Doesn't matter. In any ways, I'll shoot myself. Did the commander ask you whether you're going to marry Prem Ahuja and look after the children? Yes. What was your answer? But I avoided that question since I was too ashamed to admit that I felt Prem was trying to avoid marrying me. Mrs. Nanavati, Mamie Ahuja, sister of Prem Ahuja, was she an active participant in your extramarital affair? Yes. How? She used to cover up things for us. Many times I would tell my family that I'm going to meet Mamie. So is it correct to say that the man you were having an affair with, Prem Ahuja, was using you? Yes. Shut up! Shut up! Just shut up! She's lying! Miss Ahuja! मेरा भाई इससे प्यार करता था, इससे शादी करना चाहता था. She's lying! Miss Ahuja, I am warning you. I'll hold you in contempt of court. I'm telling you, sit down. She's lying! Lunch break. मैं क्या बोल रही थी? मेरे को ना कावास के लिए बहुत बुरा लग रहा है. पारसी लेडी के साथ शादी किया होता ना तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता. अरे इन गोरे लोगों में कोई शर्म धर्म नहीं होती. मैं तो कहती हूँ कि इस कुतिया को देश से बाहर निकालो बस. मैं बोलूँगा ना तो आपको बुरा लगेगा. भूख की आंखें नहीं होगी. 10 दिन तक भूखा रहने के बाद 11वें दिन कचरे के डब्बे में भी खाना दिखे तो टूट पड़ेगा. अगर कवच घर पे होता तो ये सब नहीं होता. अरे वो घर पे बैठेगा तो देश की सेवा कौन करेगा? अरे अपने पुराने जमाने के लोग बेवकूफ़ थोड़े ही थे. राजा रजवाड़े भी जब जंग में जाते थे ना तो अपने रानियों के कमर पे चेस्टिटी बेल्ट लगा के जाया करते थे. अरे मैं तो कहता हूँ कि आर्मी में नेवी में जितने जवान भर्ती हो रहे हैं उनके यूनिफॉर्म के साथ साथ सरकार की तरफ से एक चेस्टिटी बेल्ट भी देनी चाहिए उनकी बीवियों के लिए. अयो तो सिर्फ औरतों के लिए क्यों? मर्दों के लिए भी तो होना चाहिए. हाँ तो फिर बिल्कुल क्यों नहीं? There is no end to desires. औरतों में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए because they have to play many roles in one lifetime. Daughter, wife, mother. करेक्ट. देखो अपना देश का मनुस्मृति क्या सिखाता है?
ऐसा नहीं करने का, ये गलत काम है ना। अब ये विदेशी संस्कृति वाले को कौन समझाएगा? कावस ने सिल्विया को 3-3 बच्चे दिए, हाँ, और कितना प्यार चाहिए उसको? I must admit, there in the courtroom, there's only one brave person, and that is you, Sylvia. You should have been my first witness. But I must warn you. Be prepared. Next session, the prosecution will come hard at you. Ready. कोल्ड ड्रिंक के साथ पॉपकॉर्न लाऊं? नो सर, थैंक यू। ले लो। पॉपकॉर्न के बिना पिक्चर का मजा कैसे आएगा? सर, मैं कुछ समझा नहीं। उस दिन कोर्ट का माहौल किसी पिक्चर से कम नहीं था। इतना ड्रामा किया लोगों ने कि ऑस्कर विनिंग एक्टर भी शर्मा जाए। Everyone was at the top of their game to give a mind-blowing performance. मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिल्विया इस हद तक गिर सकती है। She will rot in hell, राम। मिमी, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन अभी हमें केस पे फोकस करना है। पहले तुम मुझे ये बताओ, प्रेम के पास गन थी? प्रेम आहूजा के पास अपनी गन थी? नहीं, उसके पास अपनी कोई गन नहीं थी, और ना ही उसके पास आर्म्स का कोई लाइसेंस था। इसका मतलब है सिल्विया नानावती जी झूठ बोल रही? जी हाँ, आज इसने जो भी कुछ कोर्ट में कहा है, सब कुछ झूठ का। जज साहब, मेरा भाई इससे प्यार करता था और इससे शादी करना चाहता था। जी हाँ, ऑफ कोर्स। और शादी की डेट भी फिक्स हो गई होगी, कार्ड भी छप गए होंगे। मेरे भाई ने खुद कहा था कि वो उससे शादी करेगा जब हम आगरा गए थे। ये भी तो थी हमारे साथ। थोड़ा सा नहीं, योर ऑनर, ये झूठ बोल रही है। शी इज द विक्टिम सिस्टर। मेरा भी यही पॉइंट है माय लॉर्ड। बस सिल्विया नानावती झूठ बोल रही है। लवर मर चुका है, पति अब जेल जाने वाला है, 3 बच्चे हैं, उन्हें संभालना है, इसलिए झूठ बोलकर अभी अपने पति को बचा रही है। त्रिवेदी जी, हवा में तीर मत चलाइए। सिर्फ आप कह रहे हैं कि वो झूठी है इसलिए मैं मान लूं, ऐसा तो होगा नहीं। कोई सबूत है आपके पास? त्रिवेदी जी, साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। I'm sorry to intervene, my lord. Prosecution Mrs. Sylvia Nanavati को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है। मिस्टर जेठमलानी, यू आर सिटिंग ऑन अ वॉचिंग ब्रीफ। आपको कोई राइट नहीं है कि आप ऐसे रिक्वेस्ट करें। मैं जानता हूं मिलॉर्ड, पर यहाँ पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर चंदू त्रिवेदी जी की अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है, और मिसेस सिल्विया नानावती सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करती है, इंग्लिश ही समझती है। तो कोर्ट का समय बचाने के लिए मैं ये प्रस्ताव रख रहा हूँ। सवाल सारे चंदू जी के ही हैं। ओके। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, यू कैन नॉट अलाउ दिस। ओवररूल्ड। प्रोसीड मिस्टर जेठमलानी। Mrs. Nanavati, in your statement you mentioned that you didn't want Kawas to go to Prem Ahuja's house because you were afraid that Prem might shoot him. Is that correct? Yes, When did you see the gun? on our trip to Agra. So you did go to Agra. Nice. Did you ever see the gun before or after that day? I don't remember. Mrs. Nanavati, I'm a little confused, and I'm sure everyone else in this court is equally confused. On one hand, you were afraid that Prem Ahuja might shoot your husband, and on the other hand, you decided to watch a comedy film. Movie with my children was already planned. I'm sure you can understand it's not easy to explain these things to children. So, as I had promised, I took them to the cinema. You mentioned that Prem Ahuja changed a month or 2 after your intimate relationship. Why did you continue meeting him? We had not really come to any conclusion on the question of marriage. We just let it drift. But you were determined to marry him. No. It was just an infatuation. Right. Milord, Mrs. Nanavati का ये कहना है कि उनके संबंध प्रेम आहूजा से महज इन्फैचुएशन के थे। सिर्फ लगाव था उनके बीच। शादी करने का उनका कोई इरादा नहीं था। लेकिन मेरे पास कुछ चिट्ठियां हैं
जो बिल्कुल अलग कहानी बयान करती है। These are some heartfelt, soulful, passionate love letters written by Mrs. Nanavati to her then lover, Prem Ahuja. Is that your handwriting? Yes. These are your letters, right? Thank you. मिलॉर्ड, मैं आपके लिए और जूरी के लिए ये चिट्ठी पढ़ने की इजाजत। I object, my lord. ये लेटर्स बहुत पर्सनल हैं। I request you to not let the prosecution read them out in court. मिस्टर जेठमलानी, ये क्या हो रहा है? I'm sorry, मिलॉर्ड। बीवी यहाँ मौजूद है, पति यहाँ है, माँ बाप यहाँ है। इस कोर्ट रूम में जो कुछ भी हो रहा है उसके चर्चे बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, टी स्टॉल में, चौल में, हाई राइज में, दुनिया भर में हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस केस से जुड़े हर शख्स की जिंदगी अब एक खुली किताब बन के रह गई है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी फार लेस एम्बैरेसिंग देन माय लर्नड फ्रेंड asking Mrs. Nanavati how many times has she slept with Prem Ahuja. Proceed. Thank you, sir. सर ये टूट गया। 1 minute. Do you mind reading this out for me? Please. March 1959. Priya, my darling, here is the letter I wrote last May. Louder, please. Jury needs to hear you. When I wrote, I meant every word. I still do. There's nothing as important as my being with you. I know you often doubt the truth of that. But believe me when I say I love you, as I never loved anyone else. Call me mad. Do whatever you like. Only believe me. I know in my heart my love for you is not the passing phase. It's for always. You are daily becoming more dear to me. Sweetheart, these last days, something has happened to me. I love you so much. I want to be with you so much that everything else seems quite unimportant. Only God knows how much I want to be with you, how much I want to belong to you. The ache in my heart is intolerant. I can't see myself without you. If you really want me, really think I can make you happy, happier than anyone else could, I'm yours. But think carefully before you decide. Consider what I am. If you want such a person as I, to be the mother of your children, that's all I want. There can be no returning once a step is taken. And I must, in all fairness, let you decide. I'm not good for you. You deserve far better. But if I'm what you really, really want, without a doubt, just say the words, I love you, Sylvia. That'll be all, Milord. मिस्टर मानेकशॉ, एक बात बताइए, कोर्ट में जब सिल्विया नानावटी के लव लेटर पढ़े जा रहे थे तो आपने कैसा महसूस किया? क्या सिल्विया नानावटी अभी भी आपके साथ रहती है, या फिर हमने तो सुना कि वो लंदन जाने वाली है? सर इतना तो बता दीजिए कि
आपको लगता है कि कमांडर नानावटी इस घटना के बाद भी एक शादीशुदा नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे? कुछ तो बताइए मिस्टर नानावटी। सिल्विया नानावटी आज कोर्ट में गाउन पहन के आई थी क्या? नहीं, सफेद रंग की साड़ी पहन के आई थी। चलो, हमारे देश ने गोरी को साड़ी भी पहनवा दी है। अब बस हिंदी बोलना सीख जाए तो देश की सबसे फेवरेट बहू भी बन जाएगी। हाँ, वैसे मैडम सिल्विया से श्रीमती सिल्विया जी बनने में श्रेय किसका है? प्रेस उनके साथ है, नेवी उनके साथ है, सरकार उनके साथ है, और अब तो लगता है कि पब्लिक ओपिनियन भी उनके साथ है। वैसे जज साहब, हाँ, अगर मेरा किसी के साथ चक्कर हो तो आप क्या करोगे? तो मैं आपका कन्यादान करूंगा। पंडित बुलवाऊंगा, मुहूर्त निकलवाऊंगा, आपकी शादी करवाऊंगा, आपको सजा धजा के डोली में बैठा के खुद डोली को अपने कंधे पे लेके उनके घर छोड़ के आऊंगा, और फिर दोनों को गोली मार दूंगा। अरे 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 क्या कर रही, मजाक है? अरे अरे गुजराती मानस खया थी बंदूक लाव से। ए मेरे दारा सिंह, चलना कुश्ती लड़ते, चलना। नहीं मैडम, अरे चल, मेरी लैला फिक्स है। थैंक यू, थैंक यू। आ गए मेरे खबरी। दौड़ से आया। बड़े उतावले हो रहे हो। मुझे देख के हर कोई तो हो जाता है। जिगर में आग भड़क रही है लगता है। आग बुझा दे। एक मिनट पहले ये तो बता, आज कोर्ट से क्या खबर लाया है? अरे ऐसा खबर लाया है तो खुश हो जाएगी। सिल्विया मैडम आई थी आज कोर्ट में। क्या बात कर रहा है? हाँ। अरे एक मिनट। हाँ। बता उसने क्या बोला कोर्ट में? अरे बोलूंगा नहीं, सुनाऊंगा मेरी जान। ये देख क्या लाया तेरे लिए। ये और Sweetheart, these last days, something has happened to me. I love you so much. I want to be with you so much that everything else seems quite unimportant. If you want such a person as I, to be the mother of your children, that's all I want. सुनिए, आप अपनी पत्नी को कह दीजिए कि ये मेरी किचन को गंदा ना किया करे। और आप अपनी पत्नी से कह दीजिए कि किचन ये अपने पापा के घर से लेके नहीं आई थी। देखिए, आप इसे कह दीजिए कि हर मामले में मेरे पिताजी को बीच में लाने की इसे कोई जरूरत नहीं। और आप इनसे कह दीजिए कि हर बात पे मुझे ताना देना बंद करें कि मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया। देखिए, आप इसे कह दीजिए। ए बस, क्या बकवास है ये? नानावटी वहां एक को नहीं संभाल पा रहा है, मैं यहाँ दो पाल के बैठा हूँ। दिख रहा है क्या कर रहा हूं मैं यहाँ? वो वहां पर उस नानावटी को भगवान राम बनाने पर तुले हुए, और तुम्हारी यहाँ महाभारत खत्म नहीं होती। ये करूं मैं अभी या ये करूं? ठीक है, अब मैं पुरानी हो गई हूं ना, इसीलिए मेरी बात का तो आपके लिए कोई महत्व ही नहीं बचा। ऐसा नहीं है, मैं छोटी हूं ना, इसीलिए शायद मेरी इज्जत नहीं है ना? हेलो राम, यस मिमी, टेल मी। पुलिस ने भाई प्रताप को स्मगलिंग के केस में अरेस्ट कर लिया है। काउस, तुम्हें कुछ बात करनी थी। हमारी लास्ट हियरिंग की स्ट्रेटेजी क्या है? वेल, दैट्स ऑलरेडी डन। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। डोंट बॉदर। आई एम बॉदर्ड। जिस तरह से तुमने मेरी वाइफ को कटघरे में बुलाया और जो सवाल पूछे, इट वाज ह्यूमिलिएटिंग। प्रोसिक्यूशन ने भी ऐसे सवाल उससे नहीं पूछा, तो आई एम बॉदर्ड एंड आई वांट टू नो। हमें पता है कि तुम अपसेट हो एंड आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन हमने जो कुछ भी कोर्ट में किया वो भी बहुत जरूरी था।
It was important to show that Kavas Nanavati is not a killer, but a hero. But Kavas is dead now, and you killed him. And this Kavas Nanavati, ये तुम्हारा बनाया हुआ Kavas Nanavati है, क्योंकि कमांडर कावस मानेकशॉ नानावटी कभी ये खड़ा होकर नहीं बोल सकता कि I wanted to kill myself. And I refuse to take any more humiliation. Mrs. Nanavati, please explain to your husband that whatever we have done has been for his benefit. She's not a lawyer. You're the fucking lawyer. Last hearing की strategy क्या है? मुझे एक शब्द जानना है. इस केस में सारे विटनेसेस और एविडेंसेस पेश हो चुके हैं, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है और जूरी को भी लगभग सारे फैक्ट्स पता है. मेरा ख्याल है कंक्लूड करें. मलॉर्ड, आप 100% सही बोल रहे हैं, तभी तो आप वहाँ हैं और हम यहाँ हैं. तो फिर त्रिवेदी जी कंक्लूड करें. बिल्कुल मलॉर्ड, मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूँ. बस मैं चाहता हूँ कि जूरी और बाकी जो उपस्थित लोग हैं उन सब के लिए एक बार इस केस की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करूँ. क्या है ना सर, आप जैसा एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी सबके पास नहीं है ना. ठीक है, जल्दी कीजिए. प्रोसिक्यूशन लेफ्टिनेंट जेडी कूपर को बुलाना चाहती है. मेरा नाम लेफ्टिनेंट जेडी कूपर है एंड आई वर्क इन द एम्यूनिशन डिपो ऑफ द नेवी. 27 अप्रैल को कमांडर कावस नानावटी को .38 स्मिथ एंड वेसन बोर्स नेवी सर्विस रिवॉल्वर आपके ऑर्डर पर दी गई थी. जी हाँ. क्या आपको पता था उन्हें किस पर्पस के लिए गन की जरूरत आ पड़ी थी? जी नहीं, आई डिडंट नो दैट. क्या वो ड्यूटी पर थे? नो. तो आपको डाउट नहीं हुआ एक ऑफ ड्यूटी नेवी ऑफिसर को गन की क्या जरूरत थी? आई वाज जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स. ऑर्डर्स? किसके दिए हुए थे? कैप्टन कोहली, क्या आपको पता था कमांडर कावस नानावटी को सर्विस रिवॉल्वर क्यों चाहिए थी? उन्होंने मुझसे कहा कि वो शहर से बाहर जा रहे हैं और सेल्फ डिफेंस के लिए उन्हें अपनी सर्विस रिवॉल्वर की जरूरत पड़ेगी. मालॉर्ड, झूठ बोलकर कमांडर कावस नानावटी ने गन इशू करवाई थी, क्योंकि वो बॉम्बे के बाहर गई नहीं थी और ना ही कभी बाहर जाने का प्लान था. थैंक यू. खंडाला वाला साहब, आपको कुछ पूछना है कि आगे बढ़े? As per the weapon issuing records, 27 अप्रैल के पहले कमांडर ने 4 बार गन इशू करवाई थी. Am I right? It's regular practice. Officers are issued with their personal weapons as and when required, sir. अगर उस वक्त कमांडर आपके पास आते और कहते that my wife is having an affair and I'm feeling very depressed, I wish to end my life, तो क्या आप वो गन इशू करते? Never. Thank you, Captain Kohli. You may go now. अंजनी जी, आपने दरवाजा खोला, कमांडर कावस नानावटी आपके सामने खड़े थे, उनके हाथ में ब्राउन एनवेलप था, मतलब भूरा लिफाफा था, और वो फिर वो लेकर वो सीधे प्रेम भैया के रूम की तरफ गए. खड़े, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर कुछ देर में ऊपर से गोली चलने की आवाज़ आई और हम दौड़कर ऊपर भागे. वो गोली चलने की आवाज़ कितनी देर बाद सुनी आपने? देर क्या साहब, ऊपर गए और धाए 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 सबको पता है. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो ऊपर जाने के बाद कितनी देर बाद आपने वो आवाज़ सुनी? यही कोई 10-20 सेकंड. बस 10-20 सेकंड? पर डिफेंस ने तो कहा था कि पहले डायलॉग बाजी हुई, फिर हाथापाई हुई, फिर हाथापाई में एक्सीडेंटली गोली चली, गोली हार्ड सरफेस से टकराकर फिर प्रेम आहूजा को लगी, और ये सब 10-20 सेकंड में हो गया. सोच कर जवाब दीजिए, नहीं तो काल साहब नाराज हो जाएंगे. हम तो वही बता रहे हैं साहब जो सच है. काल साहब. अंजनी जी, अंजनी जी, मैंने 2 बार आपका नाम लिया. इन दोनों के बीच में कितना अंतर था? अंतर कहाँ था साहब?
1-2 सेकंड का फर्क होगा। Precisely 8 seconds, Your Honor. और ये कह के इन्होंने प्रूव कर दिया है that his sense of timing is a little गांव वाला। मैंने सुना है वहां घड़ी नहीं होती, तो लोग सूरज की रोशनी को देखकर टाइम का अंदाजा लगाते हैं। Guess work, ठीक जैसे अभी आपने लगाया। करेक्ट? आप घड़ी पहनते हैं? नहीं साहब। तो फिर आपने इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह दिया कि सिर्फ 10 से 20 सेकंड लगे थे? हम अंदाजे से बता रहे थे साहब। और अंदाजा गलत भी हो सकता है, खास तौर पर जब घर में किसी की जान गई हो। मिस आहूजा, जब आप अपने भाई के कमरे में गईं, तो आपने क्या देखा? मैंने देखा कि my brother was lying dead in a pool of blood और कावस उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में गन थी। आपको क्यों लगता है that the commander killed your brother? क्यों लगता है? My brother was lying in a pool of blood और उसके हाथ में गन थी। Did you see him shoot? मैंने 3 गोलियां चलने की आवाज सुनी। गोली चली थी। In fact, that is the only one thing that the prosecution and defense agree upon. But the question here is, did you see him shoot? Objection, my lord. Overruled. Ms. Ahuja, please answer the question. नहीं, मैंने नहीं देखा उसे मेरे भाई को मारते हुए, but I know he killed my brother. Nobody's bothered about what you know, Miss Ahuja. Thank you. Thank you very, very much. ऑफिसर लोबो, 27 अप्रैल को कमांडर कावस नानावटी ने जब आपको कन्फेशन दिया था, तब उनके कपड़े पर कोई दाग या धब्बे थे, मिट्टी के, धूल के? उनके कपड़े कहीं से फटे हुए थे? नो, नॉट एट ऑल। वाइट कलर का शर्ट पहना था कमांडर ने, एंड इट वाज परफेक्टली क्लीन। खून के दाग, छींटे? नो, नॉट एट ऑल। हिज क्लोथ्स वर स्पिक एंड स्पैन। कहीं चोट चेहरे पर, सर पे? नो। माय लॉर्ड, एक आदमी ने हाथापाई की, उसके सामने जो आदमी था उसको 3 गोलियां लगी, फिर भी इसके कपड़े पर कोई भी दाग नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है अगर हाथापाई ना हुई हो या गन डिस्टेंस से चलाई हो। जब कमांडर कावस नानावटी प्रेम आहूजा से मिलने गए थे, तब प्रेम आहूजा तौलिया पहन ली, हाथापाई हुई और तौलिया भी नहीं गिरा। डिफेंस, एनी आर्गुमेंट? ऑफिसर लोबो, आप आज घर से कितने बजे निकले? अराउंड 7 in the morning। घर से निकलकर आप कहाँ गए? अराउंड 8 o'clock मैंने अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया, उसके बाद मीटिंग था इसलिए पुलिस स्टेशन गया, और फिर कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर्स गया। फिर योर ऑनर मैं यहाँ पे सीधा कोर्ट पहुँचा। तो सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक आपने 20 किलोमीटर का ट्रैवल किया है? या यू कैन से दैट। आप कार से ट्रैवल करते हैं या फिर मोटरसाइकिल से? मोटरसाइकिल। Yet your clothes are spick and span. ऐसा लगता है कि आप सीधा घर से आए हो। Anyways, मैंने आपका स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें आपने लिखा है कि the commander's clothes were spick and span और उनके हाथ पर एक निशान था। Yes, now that you mention it, my apologies, Your Honor, मैं बताना भूल गया। हाँ, कमांडर की रिस्ट पर निशान था, राइट? नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है अक्सर। उस निशान को जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? खरोच जैसा निशान था, छोटा, स्मॉल, देखने में फ्रेश, ताज़ा घाव लग रहा था। ऑफिसर लोबो, अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि वो निशान 2 लोगों के बीच में जब हाथापाई होती है, तब हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ हाथापाई की वजह से कपड़ों पर धूल मट्टी लग सकती है। कपड़ों का तो आपने बता ही दिया है। They were spick and span. Yes. But thank you for explaining the wound. I have immense respect and admiration for you, Kawas. But let me tell you, no other lawyer will be able to do to this case what I am doing. और पता नहीं तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बताया कि नहीं, बॉम्बे के 15 बड़े लॉयर्स ने ये केस लड़ने से मना कर दिया था, एक्सेप्ट मी। यू इन द नेवल सेल
because of me. Your wife is standing by you because of me. Your parents are hoping that one day their son will come back because of me. The least you can do is show some bloody respect. Vikram, you do what you think is right. Mom, I'm really sorry. हेलो मेनन। जी पंडित जी। मेरी बात ध्यान से सुनो। जी हाँ। Are you sure, पंडित जी? हेलो। यस सर। मेनन सर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज से पहले हमारा कोई नेवी कमांडर मर्डर के आरोप में जेल भी नहीं गया है। ओके सर। थैंक यू।